Hello students, welcome to my channel Hans Commerce Tutorial for the lectures on commerce, accounts, finance and management. My suggestion to you, before watching the video, please go to the description below my video. You'll find a link there. Take a printout of the problems given in the link and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution and the explanation to get the maximum benefit from the lectures. Come on students, now we'll start problem number 14. 14th problem. See carefully. A limited company issued a prospectus inviting applications for 2000 shares of rupees 10 each at a premium of 2 rupees per share payable as follows. The company has issued 2000 shares, face value 10 rupees, 2 rupees premium, तो 12 rupees में share issue. On application 2 rupees, on allotment 5 rupees including premium. तो 5 रुपये allotment के है जिसमें 3 रुपये capital के है और 2 रुपये premium. And first call 3 rupees, final call, second and final call 2 rupees. Applications were received for 3000 shares and allotment made pro rata to the applicants of 2400 shares. Money overpaid on application was employed on account of sum due on allotment. 3000 application आए. 3000 application में pro rata allotment will be made for 2400 applications. तो एक्चुअली कंपनी इश्यू कर रहा 2000 शेयर, पब्लिक के पास से एप्लीकेशंस आए हैं 3000 शेयर्स. वो 3000 शेयर्स में से 2400 एप्लीकेशंस को प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ. तो इसका मतलब बाकी के जो 600 शेयर्स है वो रिजेक्शन. तो आउट ऑफ 3600 एप्लीकेशंस वेर आउटराइटली रिजेक्टेड, रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी. कंपनी एप्लीकेशन मनी वापस कर दिया 600 शेयर्स के ऊपर. बचे हुए जो 2400 शेयर्स है, एप्लीकेशंस है, उसको 2000 शेयर्स अलॉट करा. तो रेशो क्या हो गया? 24:20. यानी जो 24 शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा उसको 20 शेयर्स मिलेंगे, जो 12 शेयर्स अप्लाई करेगा उसको 10 शेयर्स मिलेंगे. दैट इज कॉल्ड प्रो राटा अलॉटमेंट. ऑन 2400 applications, 2000 will be the allotment. Ramesh, to whom 40 shares were allotted, failed to pay the allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. तो एक रमेश एक शेयर होल्डर है जिसके पास 40 शेयर है. उन्हें एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया. He has not paid the allotment money and he has not paid the first call money. So immediately after first call his shares are forfeited. Now Mohan, the holder of 60 shares, failed to pay the 2 calls and his shares were forfeited after the second call. और एक शेयर होल्डर है मोहन, इसके पास 60 शेयर्स है. इन्हें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिया, सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिया. He has paid application, he has paid allotment, but he has not paid the first call and final call. Then after final call, his shares are also forfeited. Then of the shares forfeited, 80 shares were sold to Krishna, credited as fully paid for rupees 9 per share. जो 100 शेयर, पहले रमेश के 40 शेयर्स और मोहन के 60 शेयर्स, तो टोटली 100 शेयर्स वर forfeited. अब ये 100 शेयर्स जो forfeit हो गए, उसमें से 80 शेयर्स वर reissued. 80 शेयर्स वर reissued to Krishna at a price of rupees 9 per share. 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में इश्यू कर. And the whole of Ramesh share being included. अब ये जो 80 शेयर सोल्ड करे, रीइश्यू करे, वो 80 शेयर में रमेश के पूरे 40 शेयर मिले हुए. शो जर्नल एंड कैश बुक एंट्रीज एंड बैलेंस शीट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर पासिंग द जर्नल एंट्रीज, विल मेक सम वर्किंग नोट्स टू फाइंड आउट हाउ मच इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट में कितना पैसा रिसीव करे वो मालूम करेंगे. यू कैन सी हियर shares applied by Ramesh is 48 shares. How we got 48? He was allotted 40 shares. He was allotted 40 shares. Or what is the pro rata allotment for 2400 applications? 2000 shares are allotted.
2400 एप्लीकेशंस के ऊपर 2000 शेयर्स अलॉट करें, तो रेशो क्या हो गया उसका 24 डिवाइडेड बाई 20, 24 डिवाइडेड बाई 20, तो 2400 डिवाइड बाई 2000 इंटू 40, यू विल गेट 48. तो 48 शेयर्स हैड बीन अप्लाइड बाय रमेश. रमेश 48 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, तो उसको 40 शेयर्स अलॉट हुए थे. He was allotted 40 shares. Now application money received from Ramesh. He has applied 48 shares and application money 2 rupees. So 96 rupees he has paid on application. Application में 96 पे करा. Amount due for application. ये जो application money आया 48 shares पे आया, लेकिन उसको allotment कितना हुआ 40 shares. तो 40 shares का application money 80 rupees. तो 96 rupees he has paid and actual application is 80 rupees. तो 16 rupees excess application money adjusted towards allotment. अब रमेश के 16 रुपए ज्यादा आ गए, अब वो 16 रुपये को एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में, राइट. नाउ अमाउंट ड्यू फ्रॉम रमेश ऑन अलॉटमेंट, उसको 40 शेयर अलॉट हुए, एक शेयर के ऊपर 5 रुपये अलॉटमेंट मनी है, तो 40 इंटू 5 200 रुपीज, तो टोटल अमाउंट 200 रुपये आना है उसके पास से. और ऑलरेडी एक्सेस मनी कितना है उसका 16 रुपीज एक्सेस मनी है, वो एडजस्ट कर लेंगे. लेस एडजस्टेड फ्रॉम एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1600, तो 184 इज द अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम रमेश. तो अब अलॉटमेंट के टाइम पे रमेश को 184 रुपीज पे करना था, ये 184 रुपीज रमेश नहीं पे कर. रमेश हैज नॉट पेड 184 रुपीज. नाउ विल फाइंड आउट हाउ मच इज द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. Total amount due on allotment 2000 shares into 5 rupees 10,000. 2000 शेयर है, 5 रुपये एक शेयर के ऊपर, तो 10,000 रुपए टोटल अलॉटमेंट. उसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड. एक्सेस एप्लीकेशन मनी 400 एक्सेस आ. देखिए 2000 शेयर्स अलॉट करें, जबकि एप्लीकेशन मनी जो आया है 2400 का आया, तो 400 शेयर्स एक्सेस, एक शेयर के ऊपर 2 रुपये, तो 400 इंटू 800 rupees excess application money we have received. तो total allotment money 10,000, उसमें से 800 rupees already we have received at the time of application, excess application निकाल दो, तो बचे हुए 9,200. अब 9,200 रुपये आने का है अलॉटमेंट में, लेकिन एक शेयर होल्डर है रमेश, उन्हें नहीं पे करा. रमेश के पास से अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना है 184 है, रमेश के पास से 184 रुपीज आने का है, वो नहीं दिया हो, तो लेस 184 अमाउंट नॉट पेड बाय रमेश. तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इज 9016. तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इज 9016. तो ये बेसिक कैलकुलेशंस वी रिक्वायर बिफोर पासिंग द जर्नल एंट्रीज. नाउ विल कम टू जर्नल. द फर्स्ट जर्नल एंट्री इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. The company has received the application money on 3000 shares. Public जो अप्लाई करे 3000, तो 3000 into 2 6000 rupees application money received, being the application money received. अब उसमें से रिटर्न कर दिए, जो 3000 applications आए थे उसमें से 600 applications का पैसा रिफंड कर दिया, 600 शेयर्स के पैसे रिफंड कर दिए. तो एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेटा टू बैंक, 600 शेयर्स इंटू 2 रुपीज 1200, 1200 रुपए पे हो गए, राइट. अब ये 6000 रुपीज आए थे, उसमें से 12 रुपए तो वापस हो गए. अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. द कंपनी इज हैविंग 2000 शेयर्स, 2000 शेयर के एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. तो 2000 इंटू 4000 रुपीज ट्रांसफर, राइट. अब देखिए 6000 में 4000 रुपए कैपिटल में डाल दिए और 1200 रुपए रिफंड कर दिए, तो बचा हुआ कितना है 6000 माइनस 4000 2000, 2000 में से 1200 निकालो 800, तो 800 रुपीज एक्सेस एप्लीकेशन मनी है. दैट 800 रुपीज एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट. यहां पर लिखा हुआ है 800 रुपीज एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट. ये हो गया 3 एंट्रीज. नाउ फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू. पर शेयर अलॉटमेंट 5 रुपीज है इंक्लूडिंग प्रीमियम. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेटा 2000 इंटू 5 10,000 रुपीज आने का है,
उसमें से टू शेयर कैपिटल 2000 इंटू 3, टू शेयर प्रीमियम 2000 इंटू 2। 5 रुपये में 3 रुपए कैपिटल के, 2 रुपए प्रीमियम के। बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू, द नरेशन इज बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेटा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 800 रुपीज एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आया था उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेटा टू शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री पास करने से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो गया। पहली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट करें 6000, सेकेंड एंट्री में एप्लीकेशन डेबिट 200, नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन 4000, नाउ शेयर एप्लीकेशन 800। अब ये ऐड कर दो 1200 प्लस 4000 प्लस 800, यू विल गेट 6000। एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज, एडजस्ट हो गए। 800 रुपए बचे हुए थे, वो भी अलॉटमेंट में डाल दिए। बीइंग द एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। नाउ बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट का पैसा आ गया। अलॉटमेंट के लिए कितना अमाउंट रिसीवेबल था? 9016। 9016 इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 9016, बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नाउ फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल, बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 2000 शेयर्स इंटू ₹3। फर्स्ट कॉल 3 रुपये का है, प्रॉब्लम में दे दिया, तो 2000 इंटू 3 6000। 6000 रुपीज इज द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। नाउ रिसीव्ड, अब रिसीव करते वक्त फर्स्ट कॉल का पैसा दोनों का नहीं आया। किसका नहीं आया? रमेश का भी नहीं आया, मोहन का भी नहीं आया। रमेश के पास 40 शेयर्स है, मोहन के पास 60 शेयर्स है, दोनों को मिला ले तो 100 शेयर्स। ऑन 100 शेयर्स फर्स्ट कॉल मनी इज नॉट रिसीव्ड। तो 2000 में से 2000 में से 100 शेयर्स का पैसा नहीं आया। तो कितने शेयर्स का आ गया? 1900 शेयर्स का आ गया। बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर फर्स्ट कॉल 1900 शेयर्स इंटू 3 रुपीज 5700, बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1900 शेयर्स। नाउ फर्स्ट कॉल जैसे ही हो गया, होने के बाद रमेश के शेयर्स को कैंसिल कर दिए, फोरफिट कर दिए। रमेश शेयर्स आर फोरफिटेड। ही हैज पेड ओनली एप्लीकेशन, he has not paid allotment, और allotment में शेयर प्रीमियम मिला हुआ है। तो बताइए शेयर प्रीमियम he has not paid, शेयर प्रीमियम he has not paid, तो फिर अकाउंट को डेबिट कर देना। शेयर प्रीमियम अकाउंट शुड बी डेबिटेड बिकॉज he has not paid the प्रीमियम। पे कर देता तो डेबिट नहीं करते थे, नहीं पे करा उन्हें, डेबिट कर दे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेटा 40 शेयर्स इंटू 8 रुपीज। 8 रुपीज का मतलब पूरे 10 रुपीज का शेयर है, उसमें 2 रुपीज अप्लीकेशन दिया, बाकी के 8 रुपीज नहीं दिया उन्हें। अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया, फाइनल कॉल मनी नहीं दिया, तो ओनली 2 रुपीज ही पेड, तो 8 रुपीज। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 40 इंटू 8 320, शेयर प्रीमियम 40 इंटू 2 80, शेयर प्रीमियम डेबिट कर देंगे। टू शेयर्स फॉरफिटेड, हाउ मच ही हैज पेड? He has paid 48 शेयर्स के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से पे करा। 48 इंटू 2 96 रुपीज he has paid, यहां पर लिखा he has paid 96 रुपीज। टू शेयर अलॉटमेंट, he has not paid the allotment money. How much allotment money he has not paid? 184. Amount due but not received from Ramesh 184. Allotment money he has not paid 184, and first call money also he has not paid 120. 40 शेयर के ऊपर, एक शेयर के ऊपर 3 रुपीज, तो 40 इंटू 3 120 रुपीज he has not paid on first call. तो दिस इज द एंट्री फॉर forfeiture of 40 shares held by रमेश। ये forfeiture हो गया। अब शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल। अब कंपनी के पास 1960 शेयर्स है, पहले 2000 शेयर थे, उसमें से 40 शेयर्स फोरफिट हो गए, तो फाइनल कॉल का जो पैसे आएंगे वो 1960 शेयर्स पर ही आएंगे। तो 1960 शेयर्स इंटू 2 रुपीज 3920, बीइंग द अमाउंट ड्यू ऑन शेयर फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल के पैसे भी आ गए। अब ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल में ये मोहन भी पैसा नहीं दिया 60 शेयर्स का, तो 1960 में से और 60 निकाल दो, कितने बचे? 1900 शेयर्स। तो 1900 शेयर्स का फाइनल कॉल मनी आ गया। तो 1900 इंटू 2 3800, तो बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर फाइनल अकाउंट 3800, बीइंग द फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। नाउ फॉरफिचर,
अब मोहन के जो 60 शेयर्स थे वो भी फोरफिट कर लिए, दैट इज ऑल्सो फोरफिटेड। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 600, क्योंकि पूरे 10 रुपीज कंपनी कॉल कर ली, पूरे 10 रुपीज कॉल करने के बाद फोरफिट कर रही, तो 60 शेयर्स इंटू 10 रुपीज 600 शेयर्स फोरफिटेड। मोहन हैज नॉट पेड द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो 5 रुपये नहीं पे करा उन्हें, बाकी के 5 रुपये पे कर दिया, तो जो पे कर दिया उसको डाल देंगे शेयर्स फोरफिट। टू शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट 60 इंटू 5 300, टू फर्स्ट कॉल 180, टू फाइनल कॉल 120। फर्स्ट कॉल के 180 नहीं दिया उन्हें, 60 इंटू 3, 60 इंटू 3 180, और फाइनल कॉल के 120 रुपीज नहीं दिया, 60 इंटू 2, बीइंग द 60 shares of Mohan forfeited due to non-payment of first call and final call। अब रीइश्यू 100 शेयर्स जो आ गए, 40 शेयर फोरफिट करे रमेश के और 60 शेयर फोरफिट करे मोहन के। अब कंपनी के पास जो फोरफिटेड शेयर्स 100 है, वो 100 में से 80 शेयर्स कंपनी कृष्णा को रीइश्यू कर। तो कृष्णा को कितने में रीइश्यू कर रहा उन्हें, 9 रुपीज में रीइश्यू कर। तो बैंक अकाउंट डेटार 80 शेयर्स इंटू 9 720, 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में इश्यू करा, 1 रुपी लॉस। तो शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट 80 इंटू 1 80 रुपीज। 2 शेयर कैपिटल 80 इंटू 10 800, बीइंग 80 forfeited shares reissued, 80 forfeited shares reissued to Krishna at rupees 9 per share। A balance remaining in shares forfeited account will be transferred to capital reserve। अब देखिए shares forfeited account 2 times we have created, shares forfeited account 96, here shares forfeited account 300, तो टोटली 396 रुपीज आपके क्रेडिट है, 396। अब 396 में डेबिट कितना करे थे ये देखेंगे, 396 में शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट इज डेबिटेड बाय 80, तो 396 क्रेडिट साइड है और 80 डेबिट साइड है, तो नेट अमाउंट 316 रुपीज अभी बाकी है कई में शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में। लेकिन पूरे 316 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे शेयर्स रीइश्यू नहीं करें, 100 शेयर्स में से खाली 80 शेयर्स रीइश्यू करें। अभी 20 शेयर्स कंपनी के पास बाकी है, वो 20 शेयर्स किसके हैं, वो मोहन के हैं, क्योंकि रमेश के तो पूरे शेयर्स रीइश्यू हो गए, प्रॉब्लम में दे दिया। रमेश के जो शेयर्स थे वो पूरे रीइश्यू हो गए, मोहन के शेयर्स में से 20 शेयर बचे हुए, तो 20 शेयर का शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट दैट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो 20 शेयर्स का कितना होगा, देखिए मोहन के पास से जब फॉरफिट करे थे, ये मोहन के पास से जब फॉरफिट करे थे तो एक शेयर के ऊपर 5 रुपये, फॉर ईच शेयर 5 रुपीज इज द गेन। तो फॉर 20 शेयर्स हाउ मच, तो 20 इंटू 5 इज 100, तो 100 रुपये ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि वो शेयर रीइश्यू नहीं हुए। तो 316 माइनस 100 यहां पर लिखा, 316 माइनस 100, 216 रुपीज शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेटा टू कैपिटल रिजर्व 216 बीइंग द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अगेन आई रिपीट, आपको 216 कैसा है फिर एक बार समझा देता हूं मैं, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 96, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 300, तो टोटल क्रेडिट इज 396, whereas shares forfeited account is debited by 80। एक बार डेबिट करे 80 रुपये, तो 396 में से 80 रुपीज माइनस कर दो 316, तो टोटल अमाउंट इन शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट इज 316। लेकिन पूरे शेयर्स रीइश्यू नहीं हो गए, अगर 100 शेयर फॉरफिट करते और पूरे 100 शेयर रीइश्यू अगर कर देते तो पूरे 316 रुपीज को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे, लेकिन वैसा नहीं है। 100 शेयर्स फॉरफिट करके कंपनी जब रीइश्यू कर रहा तो खाली 80 शेयर्स रीइश्यू कर रहा, 20 शेयर कंपनी रीइश्यू नहीं कर रहा, तो वो 20 शेयर का जो शेयर्स फॉरफिटेड है दैट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो कितना होगा 20 शेयर का, किसके 20 शेयर है वो देखना, ये 20 शेयर जो आए हैं वो मोहन के हैं, रमेश के नहीं है। तो मोहन के एक शेयर के ऊपर गेन कितना हो रहा था, 5 रुपीज हो रहा था। मोहन के शेयर्स जब फॉरफिट करे थे तो एक शेयर के ऊपर 5 रुपये का गेन हो रहा था,
तो 20 शेयर का कितना होगा, 20 इंटू 5, 100 रुपीज। तो ये 100 रुपीज को ट्रांसफर नहीं करता, बाकी का ट्रांसफर करता। So these are the journal entries. Now we are required to show the balance sheet of the company. It's a last problem on this issue of shares. That's why it is a very lengthy problem. So it requires a lot of patience to complete this problem. Every problem will not be as difficult as this one. Only this problem requires more patience. So balance sheet of dash as on dash, name not given, so they'll write on dash. Equity and liabilities, because time is short, that's why I'm not writing in full form. I'm giving only abbreviations, but you must write in examination completely equity and liabilities. Shareholders fund, share capital, then reserves and surplus is also there. This is the balance sheet. Now we need the notes forming part of financial statements. In note we have to write down the authorized capital, issued capital, subscribed capital. Notes forming part of financial statements. First note will be share capital. Share capital. Authorized capital not given. Put a dash. Then issued, subscribed, called and paid up. Issued, subscribed, called and paid up. So 1980 shares. Because 20 shares are not reissued. 1980 shares of rupees 10 each, fully called and paid up. पूरे 10 रुपए कंपनी कॉल कर ली और पूरे शेयर होल्डर्स पे कर दिए, तो 19,800. एड शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट. शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में 100 रुपये है भी. 19,900. This is the share capital. Now note number 2, reserves and surplus. In reserves and surplus, capital reserve. Just now last entry we have transferred some amount, 216 rupees, that is transferred to capital. Share premium. First of all, share premium, we have credited by 4,000. And here we have debited by 80 rupees. So 3,920 rupees are there in share premium, 3,920. 4,136. This is the total remaining in reserves and surplus. 4,136. Now take the total. 24,036. 24,036. That's all. In bank you can find out the balance. जहां जहां बैंक को डेबिट करे हैं पूरे ऐड करिए, और जब बैंक को क्रेडिट करिए सब्ट्रैक्ट. You will get 24,036 as the total.
This is the representation of balance sheet of the product. Come on students, now we'll start problem number 15. Now see the 15th problem. So far we have done the problems on issue of shares. Now this is the problem, first problem on issue of debentures. Now Hind Electric Company Limited issued at par 6,000 7% debentures in bonds of rupees 1,000 each. तो ये कंपनी बॉन्ड्स इश्यू कर रही, डिबेंजर्स इश्यू कर रही, 6,000 डिबेंजर्स है, एक डिबेंजर 1,000 रुपीज का है, तो 6,000 into 1,000 you will get 60 lakhs. तो कंपनी requires 60 lakh rupees and each payable 20% on application. तो 60 lakh का 20% 12 lakh. तो 12 lakh rupees is payable on application, then 20% on allotment, same 12 lakh, 30% on first call and the balance 1 month thereafter. तो 20 plus 20 40, 40 plus 3 40 plus 30 70. तो लास्ट फाइनली 30%. तो 20%, 20%, 30%, 30%. Accepting the allotment money on 400 bonds and call money on 600 bonds which were in arrears, all the money was duly received. अब कुछ exceptions है, defaulters है. Accepting the allotment money on 400 bonds, यानी total number of bonds are 6,000. वो 6,000 में से 400 बॉन्ड्स के पैसे नहीं आए, कौन से, अलॉटमेंट मनी, एंड 600 बॉन्ड्स के ऊपर फर्स्ट कॉल भी नहीं आया, फाइनल कॉल भी नहीं आया. मेक द कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज एंड शो द लेडजर अकाउंट्स. 3 things it is asking you. It is asking you to prepare the cash book, journal entries and ledger accounts, right? Now we'll start the problem. See carefully. First of all, cash book. First entry will be bank account data to debenture application. Entries are very much similar. The only thing we have to replace, in place of share we are writing debenture. Share application के बजाय debenture application. लेकिन share capital के वजह debenture capital नहीं लिखना, only debentures. Don't write debenture capital, only debentures. तो first entry will be bank account data to debenture application. तो डिबेंजर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू डिबेंजर एप्लीकेशन 20% ऑफ 60 लाख 12 लाख. ये एप्लीकेशन मनी आ गया. अब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है डिबेंजर्स अकाउंट, तो एंट्री विल बी डिबेंजर एप्लीकेशन अकाउंट डेटा टू डिबेंजर्स अकाउंट. फर्स्ट एंट्री डिबेंजर एप्लीकेशन अकाउंट डेटा 12 लाख टू डिबेंजर्स अकाउंट 12 लाख, बीइंग द डिबेंजर एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड टू डिबेंजर्स अकाउंट. हो गए, 2 एंट्रीज हो गए एप्लीकेशन के. अब 2 एंट्रीज अलॉटमेंट के. फर्स्ट अलॉटमेंट को ट्रांसफर करेंगे डिबेंजर अलॉटमेंट अकाउंट डेटा टू डिबेंजर्स अकाउंट. डिबेंजर अलॉटमेंट अकाउंट डेटा टू डिबेंजर्स अकाउंट, सेम 12 लाख, क्योंकि 20% एप्लीकेशन पर है, 20% अलॉटमेंट. 60 lakhs into 20%, 12 lakh, being the allotment money due, being the allotment money due. अब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेटा टू डिबेंजर अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे 400 डिबेंजर्स का अमाउंट नहीं आया, तो 6,000 में से 400 निकाल दो, 5,600 बॉन्ड्स का आ गया. तो यहां पर टू डिबेंजर अलॉटमेंट अकाउंट 5,600 बॉन्ड्स इंटू रुपीज 1,000, एक बॉन्ड 1,000 रुपये का है, तो 5,600 इंटू 1,000 यू विल गेट 56 लाख. तो 56 लाख का 20% 11,20,000 रुपीज रिसीव्ड. तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 11,20,000, राइट. उसी तरह फर्स्ट कॉल. अब फर्स्ट कॉल में आ जाएंगे. पहले ड्यू, डिबेंजर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेटा टू डिबेंजर्स अकाउंट, डिबेंजर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेटा टू डिबेंजर्स अकाउंट, राइट. तो हाउ मच, 30% ऑफ 60 लाख, इट कम्स टू 18 lakhs, बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी ड्यू. अब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड. अब रिसीव्ड करने का टाइम पे कितने बॉन्ड्स के ऊपर, 600 बॉन्ड्स के ऊपर फर्स्ट कॉल भी नहीं आया, सेकंड कॉल भी नहीं आया. तो टोटल 6,000 में से 600 माइनस कर दो, 5,400 बॉन्ड्स के पैसे आ गए. तो यहां पर टू डिबेंजर फर्स्ट कॉल अकाउंट 5,400 इंटू 1,000, 54 लाख.
तो 54 lakh into 30%, 16,20,000. तो 16,20,000 rupees received on first call. 16,20,000 rupees received on first call. चलिए फर्स्ट कॉल का हो गया. अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल. सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेटा टू डिबेंजर्स अकाउंट. डिबेंजर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेटा टू डिबेंजर्स अकाउंट. यहां पर भी वही 30% ऑफ 60 लाख 18 लाख ये डिबेंजर अमाउंट ड्यू है. अब उसके बाद रिसीव्ड तो बैंक को डेबिट करेंगे टू डिबेंजर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 54 लाख इंटू 30% 16,20,000. अब कैश बुक का टोटलिंग कर लेंगे. डेबिट साइड टोटल 55,60,000, 55,60,000 carried on. Balancing figure. That's all. Cash book we have prepared. We have passed all the entries. Now it is asking you to prepare the ledger accounts also. Now we are going to make the ledger account. तो ledger account कौन से बनाएंगे? डिबेंजर application, डिबेंजर allotment, डिबेंजर first call, डिबेंजर second and final call, and lastly डिबेंजर्स account. Last one डिबेंजर्स account. तो पहले क्या एंट्री पास करे थे? डिबेंजर एप्लीकेशन अकाउंट डेटा टू डिबेंजर बैंक अकाउंट डेटा टू डिबेंजर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेटा टू डिबेंजर एप्लीकेशन. तो बैंक को डेबिट कर दिए. अब डिबेंजर एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे बाय डिबेंजर एप्लीकेशन बाय बैंक. तो बैंक को डेबिट कर दिए, डिबेंजर एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे बाय बैंक 12 लाख. राइट. नाउ सेकेंड एंट्री डिबेंजर एप्लीकेशन अकाउंट डेटा टू डिबेंजर्स अकाउंट. तो डिबेंजर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे टू डिबेंजर्स और डिबेंजर्स को क्रेडिट करेंगे बाय डिबेंजर एप्लीकेशन 12 लाख. ये एंट्री पोस्ट होगी. एंट्री पोस्टेड. नाउ सेकेंड एंट्री डिबेंजर अलॉटमेंट अकाउंट डेटा टू डिबेंजर्स. तो डिबेंजर अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे टू डिबेंजर्स और डिबेंजर्स को क्रेडिट करेंगे बाय डिबेंजर अलॉटमेंट. थर्ड एंट्री डिबेंजर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेटा टू डिबेंजर्स. तो डिबेंजर फर्स्ट कॉल को डेबिट करेंगे टू डिबेंजर्स और डिबेंजर्स को क्रेडिट करेंगे बाय डिबेंजर फर्स्ट कॉल. सिमिलरली डिबेंजर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेटा टू डिबेंजर्स. तो सेकंड एंड फाइनल कॉल को डेबिट करेंगे टू डिबेंजर्स, डिबेंजर्स को क्रेडिट करेंगे बाय डिबेंजर सेकंड एंड फाइनल कॉल. ये एंट्री पास हो गया. अब कैश बुक को भी पोस्ट कर देंगे. बैंक अकाउंट को डेबिट करें तो दीज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. व्हेन बैंक अकाउंट इज डेबिटेड ऑल दीज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. तो डिबेंजर एप्लीकेशन अकाउंट बाय बैंक 12 लाख, डिबेंजर अलॉटमेंट अकाउंट बाय बैंक 11,20,000, डिबेंजर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैंक 16,20,000, डिबेंजर सेकंड एंड फाइनल कॉल क्रेडिट साइड बाय बैंक 16,20,000. वी हैव मेड ऑल द पोस्टिंग्स. अब पोस्टिंग्स करने के बाद बैलेंसिंग फिगर. डिबेंजर एप्लीकेशन अकाउंट बोथ द साइड्स इक्वल, सो अकाउंट इज क्लोज्ड. 12 lakhs, 12 lakhs. डिबेंजर एप्लीकेशन अकाउंट इज क्लोज्ड. नाउ डिबेंजर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के लिए डेबिट साइड 12 लाख, क्रेडिट साइड 11,20,000. तो बैलेंसिंग फिगर इज 80,000. 12 लाख रुपये में से 11,20,000 आ गए बैंक में, बाकी के 80,000 रुपीज ड्यू है. किसके ऊपर ड्यू है? अलॉटमेंट. फिर फर्स्ट कॉल डेबिट साइड 18 लाख, क्रेडिट साइड 16,20,000. तो 1,80,000 रुपीज ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन. डिबेंजर सेकंड एंड फाइनल कॉल 18 लाख में से सेम 16,20,000 आ गए, 1,80,000 ड्यू बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन टू बैलेंस, कैरिड. नाउ हियर डिबेंजर्स अकाउंट. डिबेंजर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड ऑल वी हैव टेकन, द टोटल कम्स टू 60 lakh. To balance carried down, balancing figure 60 lakh, by balance brought down 60 lakh. This is the problem number 15. We have prepared the cash book, journal, and we have opened the ledger accounts.